How are you all? I hope all of you are doing really. Today we are going to learn about a very interesting chapter, data handling. We have already learned in lower classes about statistics, representation of data in bar charts, making column graphs, pie graphs, line graphs, and drawing simple inferences from these graphs. We have also made a frequency distribution table of ungrouped and grouped table after tabulating the data. So what is frequency? The number of times a particular figure occurs in the given data is called its frequency. कोई एक particular figure कितने time एक data में आती है उसे कहते हैं frequency. Range. The difference between the highest and the lowest values of information in a data is known as the range of the data. जब भी range निकालना होता है data तो क्या होता है कि highest में से lowest value को minus करते हैं. Okay. Example 1 is a dice was thrown 50 times and the following outcomes were recorded. एक dice को 50 times फेंका गया और ये outcomes आए उसमें से. तो frequency table प्रिपेयर करनी है एंड देन आंसर करना जो क्वेश्चंस पूछे हैं. अच्छा टेली मार्क्स आपको पता है ना, टेली मार्क्स में हम क्या करते हैं, बार्स बनाते हैं वर्टिकल 1 2 3 4 एंड दिस इज 5. ओके सो देखिए 1 से लेके 6 तक आपके आउटकम्स होंगे क्योंकि डाइस में 6 नंबर्स होते हैं. टेली मार्क्स और उनकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है यहाँ पे. सो हाउ मेनी टाइम्स डज 6 अपीयर? 6 कितने टाइम्स आया बच्चों? देखिए 6 आया 8 टाइम्स. What is the frequency of 2? 2 की अगर हम frequency की बात करें तो 2 कितने times आया? 12 times. So frequency of 2 is 12. Okay. Next is grouping of data. Look at table below. In it, the marks collected are called variables and the number of times a variable occurs is called its frequency. For example, 25 is called variable and since it occurs 5 times, so the frequency of 25 is 5. So आपको एक table दी गई है, इसमें मार्क्स जो कलेक्ट किए हैं वो वेरिएबल्स हैं और कितने टाइम्स एक वेरिएबल आ रहा है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी. जैसे कि अगर हमने 25 का फॉर एग्जांपल लिया, एक वेरिएबल है और क्योंकि ये 5 टाइम्स आया तो 25 की फ्रीक्वेंसी हो गई 5. ओके नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 36? टेबल में देखिए 36 की फ्रीक्वेंसी इज 3 टाइम्स 3. Okay, so when the data is very large, it is not possible to prepare a table as given in the form of previous table. In that case, we use tally method to prepare frequency table as shown in table below. So जब data आपका बहुत बड़ा हो जाता है तो ये possible ही नहीं होता कि वो table को prepare करें, जैसे कि आपको previous हमने पेज पे किया था. So इस केस में हम क्या करते हैं, tally method का यूज करते हैं frequency table को prepare करने के लिए. For this, we take each observation from the data one at a time and I put a tally mark opposite to that observation. If a particular observation is repeated 4 or less number of times, we put as many vertical lines as the number of lines it is repeated. In case it is repeated 5 times, we cross out the 4 vertical lines. As I told you earlier, 1, 2, 3, 4, 5 के केस पे हम इस तरह से करेंगे and so on for more than 5 items. The frequency distribution table obtained from previous table is given below in table. ओके सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो हमें प्रीवियस टेबल से है ऑब्टेन की है. सी दिस इज द नंबर ऑफ मार्क्स गिवन है, टेली मार्क्स है एंड फ्रीक्वेंसी है. ओके नाउ एग्जांपल देखते हैं 1. द वेट्स इन किलोग्राम ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज गिवन बिलो. ये 50 बच्चों का वेट गिवन है. सो मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड फाइंड A. What is the upper limit of the class interval 50 to 55? B. Which अब क्वेश्चन देखते हैं, पहले तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है आपको. ओके सो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऐसे होता है बच्चों. देखिए 30 to 35. अब देखिए जो 30 to 35 में है इसमें आपके 30 से लेके 34 तक होगा. ओके एंड देन 35 आपका कहाँ जाएगा? अगर किसी का वेट 35 हो 35 से 40 के बीच की जो ये क्लास इंटरवल है इसमें जाएगा. 40 to 45 में आपका 40 से लेके 44 तक का होगा. ओके सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अब आपसे क्वेश्चन क्या किया गया था कि व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 50 to 55. सो ये आपकी अपर लिमिट है. ओके 50 to 55 ये होगी बच्चों लोअर लिमिट एंड दिस इज द अपर लिमिट. ओके B question is which class has the lowest frequency? तो चलिए देखते हैं कौन सी क्लास की lowest frequency है. ओके सो lowest frequency आपकी बच्चों है this one 3 है ना. So 30 to 35 right and one more question is there कि which two classes have the same frequency? कौन सी दो classes की same frequency है? चलिए देखते हैं.
सो सेम फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं आप यहाँ पर 35 to 40, 13 आ रहा है एंड 40 to 45, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी 13 है, राइट. ना टिप्स, tally marks are used to count the frequency. A bunch of 5 is usually made if frequency is more than 5 by crossing 4 marks by diagonal line. ये हम already पढ़ चुके हैं. Okay, so exercise is given over here, students. Do it yourself. Okay. Histogram. Frequency distribution table is a prerequisite for histogram used to display grouped data. Histograms are special types of bar graphs. They are similar to simple bar graphs except that the group of observations, that is class intervals, are represented on the horizontal x-axis, and each rectangular bar represents the frequency of class intervals rather than just a single value. Also, there is no gap or space between the bars, as there is no gap between the class intervals. Sometimes a zagged or broken line, also known as kink, is used along the x-axis to indicate that all the intervals between 0 to that class interval are not true. अच्छा, frequency distribution table ना किसी भी histogram के लिए बहुत ज़रूरी है. This is prerequisite, जिससे कि हम group data को display कर सकते हैं. Histograms आपके special type of bar graphs होते हैं. बार ग्राफ्स के जैसे ही होते हैं, बस इसमें क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है ना, यानी कि क्लास इंटरवल, वो रिप्रेजेंट किया जाता है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे, और जो हर रेक्टेंगुलर बार है वो क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है. अच्छा, यहाँ पे कोई गैप या स्पेस भी नहीं होता. और कई बार ना एक जैग्ड लाइन होती है, दिस इज जैग्ड लाइन, और इसे हम ब्रोकन लाइन भी कहा जाता है. ब्रोकन लाइन है, किंक इसे हम कह देते हैं. ये यूज़ की जाती है एक्स एक्सिस में, ये इंडिकेट करने के लिए जो क्लास इंटरवल जो बिटवीन 2 और उस बिटवीन 0 और 2 जो क्लास लिमिट है वो शो नहीं की गई है. ओके, टिप्स, बार ग्राफ्स और ग्रुप डेटा आर ऑल्सो कॉल्ड हिस्टोग्राम. अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं. अब देखिए यहाँ पे भी एक आपका किंक है. एक्स एक्सिस में आपको दिए गए हैं वीकली वेजेस रुपीज में, और यहाँ पे है देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स. ओके, तो जैसे 500 से 1000 रुपये कितने वर्कर्स को मिलते हैं, इसमें आपके आते हैं 4. 1000 से 1500 के में आते हैं आपके देखिए 12. 1500 से 2000 आपके आते हैं 10. ओके, और देखिए कोई गैप नहीं है इन ग्राफ्स के बीच, इन बार्स के बीच में, राइट. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया. व्हाट इन्फॉर्मेशन इज बीइंग गिवन बाय द हिस्टोग्राम. तो ये जो हिस्टोग्राम है ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है वर्कर्स के डेली वेजेस के, वीकली वेजेस के बारे में, और वर्कर्स ये डिफरेंट ग्रुप्स के हैं. ओके. बी, विच ग्रुप कंटेन्स मैक्सिमम वर्कर्स. चलिए देखते हैं कौन से ग्रुप में मैक्सिमम वर्कर्स हैं. देखिए ये जो ग्रुप है यानी 2000 से 2500 के बीच में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ वर्कर्स. चलिए वो भी देखते हैं. इक्वल नंबर ऑफ वर्कर्स कहाँ पे आपके बच्चों. अगर आप ध्यान से देखेंगे आपके पास है 1500 to 2000 and 3000 to 3500. ओके, सो ये ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ वर्कर्स है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डी, हाउ मेनी वर्कर्स हैव वेजेस 2500 एंड मोर. तो कितने ऐसे वर्कर्स हैं जिन्हें 2500 या उससे ज्यादा मिलता है. तो चलिए चेक करते हैं. सो हमें पहले देखना पड़ेगा 2500. जो 2500 है वो 2000 से 2500 के बीच में नहीं आएगा, 2500 से 3000 के बीच में आएगा. ओके, सो देखिए 2500 से 3000 ये आपके कितने हो गए 12. देन आपके ये हो गए हाउ मेनी प्लस 8 प्लस ये हो गए 2. सो 2 + 8 20 + 2 22, यानी 22 ऐसे वर्कर्स हैं जिन्हें 2500 या उससे ज़्यादा मिलता है. ओके, सो दिस इज द आंसर. सो सिमिलरली यू विल डू एग्जाम्पल 2. ओके, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए उनके आंसर करने हैं. ओके, exercise is given over here, students. Do it yourself. Okay, and keep doing practice of this chapter.